Assalamu alaikum. Today's video is on the solution of one of the question asked by ICAP in the attempt of autumn 2020. And this question relates to IS 12. So starting with the question, first of all we will read the requirement. What has the examiner asked? It has asked to prepare a note on taxation for inclusion in the DL's financial statement and a reconciliation to explain the relationship between tax expense and accounting profit. So the year end is 31st December 2019. This requirement is of 11 marks. The second thing that examiner has asked is uh, is of computing deferred tax liability as at 31st December 2019 and 2018 of both opening and closing. Okay, so if we start by reading the question, it says that accounting losses for the year amounted to 140 million. It includes an amount of 2 million recovered from a customer whose debt had been written off in 2018. Expert tax laws receivable written off are allowed as deduction. It means that if receivable written off are allowed as deduction, so the recovered amount from those written off are also allowed as or also as taxable income. Will be treated as taxable income. And the second is dividend of 16 million earned against equity investment in UK's based equity investment in a UK based company. As per tax laws, the dividend income is exempt from tax in Pakistan as 20% was taxes deducted in UK. So the other thing is this of PPE. The movement of PPE for 2018 is follows. There are two different columns: accounting WV and tax base. There are opening balances 1700 and 116. There is a difference in addition also, if you can see here, and impairment, historic and impairment. So it is the impairment is not allowed for tax purposes. Here is another adjustment regarding tax. Depreciation of 470 to 84. There is a difference in depreciation always. Disposal, the carrying value is also difference of disposal. So we'll see what we have to do while solving the question. And here is the closing balance. So difference of 20 million addition. Here difference of 20 million addition is in addition represent foreign exchange loss on acquisition which was considered as a part of cost of asset as per tax laws. So it means that tax has charged 20 million as a cost of asset, and accounting in terms of accounting the company has charged in terms of expense. So moving to the third point, research expense for the year is allowable in the next year as per tax laws. Research expense for the year amounted to 25 million and in 2018 it was 64 million. And the rent expense is allowed for tax purposes on the payment basis. Rent prepaid as at 31st 2019 is at 16 million. Oh, sorry, 6 million. And in 2018 is 1 million. Is on 31st December, DL had carried forward tax losses of 90 million against which DL had always expected that is probable for that future taxable profit will be available. The tax rate is 35%. So if we move towards the question, solving the question. So what is the company's name? It is Dua Limited. Dua Limited. It has to include notes to the financial statement. So it has to include to the financial statements, and it's for the year ended December 31st 2019. So tax expense, here it comes current tax, deferred tax, then will be available reconciliation. So we will work out on reconciliation at the time that we will conclude current tax and deferred tax both. So if we refer to working one, it is of that we will calculate of current tax. So starting with
loss before tax, it's 140 million. Okay, we'll first so the first adjustment is of bad debts recovery. So there will be no adjustment regarding it in the current tax portion because we already have included its to expense in previous year. Now uh, as we have included in this in our income and we have previously charged as our expense, so we will not include it in our we will not include or adjust it in our uh, current tax working because it's already including accounting loss before tax and we are already included this income in 40 million. So dividend is exempt, so therefore we will deduct it from here and here will be less dividend income. इनकम है 16 मिलियन की. अच्छा एक ठीक हो गया. इसके अंदर दूसरी एडजस्टमेंट अगर हम देख लें, एक पॉइंट तो हमारा खत्म हो गया बेड डेट्स और इसको मिला के. अब हम आते हैं पीपी की तरफ. पीपी में क्या है भाई, पीपी में तो एक डिफरेंस तो सीधा सीधा इम्पेयरमेंट का है. अगर हम वो इम्पेयरमेंट निकाल दें अपने उसके अंदर से अकाउंटिंग लॉस में से, तो इम्पेयरमेंट लॉस हम ऐड कर देते हैं उसके अंदर जाके. इम्पेयरमेंट लॉस सॉरी 72 मिलियन की. इसके बाद एक और हमारा है कि हमने एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज किया हुआ होगा अपना यहाँ पे, तो वो हम यहाँ से हटा देंगे. एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज्ड 20 मिलियन का. अच्छा, और हम डेप्रिसिएशन और वो चेक कर लेते हैं क्या है भाई डेप्रिसिएशन का. डेप्रिसिएशन है 470 की. अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और यहाँ पर आ जाएगी टैक्स डेप्रिसिएशन. अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है हमारी 470 मिलियन की और वो है 284 मिलियन की. सिंपल सी चीज़ें, तो मैं इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा. ठीक है. इसके बाद हमारे पास एक पीपी के अंदर एक चीज़ नज़र आ रही है हमें डिस्पोजल के हवाले से. कोई डिस्पोजल में फ़र्क आ रहा है. डिस्पोजल में फ़र्क क्यों आ रहा है भाई? यूँ फ़र्क आ रहा है कि भाई गेन का फ़र्क आ रहा है. गेन का फ़र्क आ रहा होगा क्योंकि भाई हमने जो एक एसेट बेचा वो अकाउंटिंग के हिसाब से 144 का है और टैक्स के हिसाब से 92 का है. तो 92 जो है टैक्स बेस के अंदर वो कैरिंग अमाउंट उसकी काफ़ी कम हो गई, इस वजह से हमने 92 डिडक्ट किया, जिसकी वजह से हमारा टैक्स के हमारे से गेन ज़्यादा आएगा और अकाउंटिंग के हिसाब से गेन कम आएगा. अच्छा, ये एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि हम सपोज करें कि भाई हमारे पास एसेट बिका है 170 मिलियन का. ठीक है, ये हो गया अकाउंटिंग पर्पस के हिसाब से और ये हम देखें टैक्स बढ़ेंगे. सेलिंग प्राइस तो एक ही होगी. ठीक है, हमारी WDV अकाउंटिंग के हिसाब से कितनी है भाई 144 है और उसमें 92 है. तो अकाउंटिंग ने 26 का गेन रिकॉर्ड किया होगा जबकि 78 ने वो सॉरी टैक्स से 78 का रिकॉर्ड किया होगा. तो अभी हमारी अगर हम सपोज कर लें तो 26 हमारा इसके अंदर इंक्लूडेड है जबकि होना 78 चाहिए टैक्स के हिसाब से. तो अभी डिफरेंस कितने का हो रहा है? डिफरेंस हमने कम कितने का रिकॉर्ड किया हुआ है? हमने कम 52 का रिकॉर्ड किया हुआ है. अच्छा, ये बात हम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे. उनकी डिस्पोजल की कैरिंग दी हुई है, कैरिंग ऑन दी हुई. कैसे? 144 माइनस 92 डायरेक्ट यहाँ से भी आता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे समझा दिया. तो हम यहाँ पे भी इसको अपना ऐड कर देंगे एज इनकम टैक्स बेस या गेन 52 मिलियन का. अच्छा, अब उसके हवाले से तो कोई इनकम नज़र नहीं आ रही मुझे मज़ीद या कोई एक्सपेंस नज़र नहीं आ रहा इसमें. तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर अपने उस पर जाते हैं रिसर्च एक्सपेंस. रिसर्च एक्सपेंस ने कहा कि भाई हम अलाउ करते हैं अगले साल ही. टैक्स में बोला हम अलाउ अगले साल करते हैं. तो 2019 का तो हमारा टैक्स जाएगा ही नहीं.
अब जाएगा 2018 का। क्यों? क्योंकि पिछले साल अलाउ नहीं हुआ होगा, तो पिछले साल का आज इस साल अलाउ होगा और हमारा इस साल का अगले साल अलाउ होगा। तो हम 24 का जो हमने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ होगा इसके अंदर, वो हम यहाँ से हटा देते हैं। सिक्सटी फोर का हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। एक्सपेंस अलाउड 64 मिलियन का, और रिसर्च एक्सपेंस टू बी अलाउड नेक्स्ट ईयर। तो 64 का तो हमने डिसअलाउ कर दी, अलाउ कर दिया, और 25 मिलियन का जो अपने नेक्स्ट ईयर क्लेम करेंगे हम यहाँ से डिसअलाउ कर देते हैं। 25 मिलियन का हमने डिसअलाउ कर दिया। ये दो एडजस्टमेंट इसके अंदर आ गई। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं रेंट की एडजस्टमेंट है भाई। रेंट की एडजस्टमेंट है कि रेंट इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पस पेमेंट बेसिस, यानी कि हमने पे किया तो हम उसको अलाउ कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2018 में प्रीपेड रेंट पड़ा हुआ था, वो हमने लास्ट ईयर अलाउ हो गया होगा हमें, तो इस साल वो अलाउ नहीं होगा। इस साल क्यों? चूंकि वो हमारे एक्सपेंस में आ रहा होगा, तो हम वहाँ से पहले हटाएंगे उसको। जो 6 मिलियन का जो इस साल अलाउ होगा वो हम यहाँ पे अपने वर्किंग में डाल देंगे, सिंपल। तो यहाँ से पहले हमने हटाया उसको, रेंट एक्सपेंस प्रीवियसली अलाउड कितने का? 1 मिलियन का, और रेंट एक्सपेंस अलाउड कितने का? 6 मिलियन का। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने सारी एडजस्टमेंट तो कंप्लीट कर ली है। 130 मिलियन की हमारी अमाउंट आ गई। इसके बाद हम एक एडजस्टमेंट और लगाइए, तो मेरे ख्याल से अनयूज लॉसेस की है, ये रही टैक्स लॉसेस की रह गई है, जिसमें जब हमने 2018 में हमारे लॉस हुए थे, टैक्सेबल लॉस आ रहा था हमारे पास, तो हम उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे पहले। एडजस्टेबल कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कितने के भाई? 90 मिलियन के। तो हमारे पास अमाउंट बची 40 मिलियन की, जो कि अब करंट टैक्स लगेगा जिसके ऊपर। ठीक है, ये हमारी आ गई टैक्सेबल इनकम। नाम टैक्सेबल इनकम। इसके ऊपर टैक्स चार्ज हो जाएगा 35% जो रेट दिया हुआ है, टैक्स रेट 35% का। और जो हम टैक्स दे चुके हैं अपने डिविडेंड इनकम के ऊपर ऑलरेडी, एट द रेट 20% पे। डिविडेंड इनकम की दर है ये रही, मल्टीप्लाई बाय 20%। 3.2 का हमारा करंट टैक्स एक और अमाउंट आ गई। अब उसको टोटल कर लें हम लोग इसका, तो ये हमारी करंट टैक्स की अमाउंट बन जाएगी। वो हम यहाँ से मैं लिंक कर देता हूँ उसको, मैं करंट टैक्स 17.2 का। अच्छा, अब हमें डेफर टैक्स निकालना है। डेफर टैक्स कैसे निकलेगा भाई? एक जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी मदद से हमारा इजीली डेफर टैक्स निकल जाएगा कि पहले हम ओपनिंग निकालेंगे और क्लोजिंग निकालेंगे तो हमारी डेफर टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। तो हम यहाँ देख लेते हैं कैसे निकलेगी भाई वो। डेफर टैक्स इज ऑन December 31st 2019 पहले कर लेते हैं हम लोग। कैरिंग अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, टैक्स बेस आ जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास आ जाएगा डेफर टैक्स एबिलिटी या डेफर टैक्स एसेट। डेफर टैक्स एसेट आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पीपी आएगा।
एक हमारे पास जो डिफरेंस आया था, एक रेंट का आएगा और एक रिसर्च का आएगा, बाकी तो सब परमानेंट डिफरेंसेस हैं जो भी हैं। तो पीपी आ गया हमारे पास आ गया रिसर्च, और एक आ गया हमारे पास रेंट। अच्छा, तो कैरिंग अमाउंट पीपी की क्या है भाई, और हम क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं इसको। पीपी की कैरिंग अमाउंट है 1474 और 1220, 1474 और 1220, ठीक है। सही, अब डिफरेंस निकालें। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है, इसका मतलब टैक्सेबल डिफरेंस है, टैक्सेबल डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी 35% से। सिंपल। इसके बाद फिर रिसर्च एक्सपेंस आएगा। रिसर्च जो कि है हमारी अकाउंट टैक्स, सॉरी, कैरिंग अमाउंट में फॉल नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन टैक्स बेस में बोल रहा है, टैक्स बेस वाला बोल रहा है कि भाई मैं इसको 25 मिलियन अगले साल बोलूंगा, तो टैक्स बेस में 25 मिलियन आ गया। अब यहाँ पे लायबिलिटी साइड में कैरिंग अमाउंट कम है, टैक्स बेस ज्यादा है, तो डिडक्टिबल डिफरेंस राइज होगा, और फिर डिफर्ड टैक्स एसेट राइज होगा इसमें। फिर अगर हम आ जाए प्रीपेड रेंट के अंदर, प्रीपेड रेंट कैरिंग अमाउंट के कैरिंग वैल्यू 6 है उसकी, और टैक्स बेस उसकी 0 है, तो कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, टैक्स बेस कम है, तो हमारा डिफरेंस टेम्परेरी डिफरेंस अराइज होगा, और उस पर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी। सिंपल। अगर उसको हम वापस एक दफ़ा, ठीक है, अब यहाँ पे एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ उसको। यहाँ पे डिफरेंस टैक्सेबल डिफरेंस क्यों आया, क्यों हमारे भाई कैरिंग अमाउंट, ये हमारा एसेट है, हमारी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, जिसकी वजह से हमारा टैक्सेबल डिफरेंस अराइज हुआ। ये रिसर्च है, ये हमारी लायबिलिटी है। अगर मैं इसको इस तरीके से भी कर दूँ, टैक्स बेस हमारी ज़्यादा है, कैरिंग अमाउंट हमारी कम है, जिसकी वजह से डिडक्टिबल डिफरेंस अराइज हुआ, और रेंट में हमारा कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, टैक्सेबल डिफरेंस कम है, तो सॉरी टैक्स बेस कम है, तो टैक्सेबल डिफरेंस अराइज हुआ, जिसकी वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी। इसका हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, 82.5 का हमारा टोटल आ गया, यानी कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस आ गया एज एट December 31, 2019। हम यही बैलेंस 2018 के लिए भी निकाल लेते हैं। अब हमारा पीपी की कैरिंग अमाउंट क्या थी भाई, 1700 और 1116, 1700 और 1116, ठीक है। इसके अंदर भी वही रिसर्च एक्सपेंस 64 मिलियन का था उस टाइम पे, और प्रीपेड रेंट उस टाइम पे 1 मिलियन का था। तो यहाँ पे हम देख भी लेते हैं, 1 मिलियन जो हमने अलाउ किया वो यहाँ पे आ गया, 64 मिलियन जो हमने लास्ट टाइम अलाउ हुआ वो यहाँ पे आ गया, तो पीपी कैरिंग अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है। सिंपल। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज डालेंगे, अनयूज्ड टैक्स लॉसेस 90 into 35%। तो भाई यहाँ पे अनयूज टैक्स लॉसेस डाल दिया हमने, 90 मल्टीप्लाई बाय 35%, क्योंकि हमें आगे जाके उससे फायदा होगा, और फिर यहाँ पे उसको हमने एड बैक कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो अमाउंट आया 150.85 का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया डेफर्ड टैक्स का। डेफर्ड टैक्स के अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट क्या आएगी भाई, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है दोनों साइड पे, तो अगर मैं इसको टी अकाउंट बना दूँ ज़्यादा बेहतर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे हमारे पास 150.85 का, और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है यहाँ पे
82.25 का। अच्छा, यहाँ ओपनिंग ज़्यादा है, क्लोजिंग कम है, तो हमारे डिफर्ड टैक्स इनकम राइज हो रही है, तो उसकी अमाउंट होगी 150.85 माइनस 82.5 यानी 68.60 की हमारी डिफर्ड टैक्स इनकम राइज हो रही है। डिफर्ड टैक्स इनकम हमारी आ गई 68.6 मिलियन से, उसका टोटल कर लें हम लोग, हमारे पास आ जाएगा 51.4 मिलियन का टैक्स एक्सपेंस, यानी टैक्सेबल इनकम ही हुई हमारी वैसे ये। चलिए, अगर हम रिकन्सिलेशन एक जो उसकी रिक्वायरमेंट रहेगा वो बना ले तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। रिकन्सिलिएशन, अच्छा, लॉस बिफोर टैक्स है, सॉरी, टैक्स ऑन अकाउंटिंग लॉस होना चाहिए 140 मिलियन इंटू 35%, ये हमारा टैक्स ऑन अकाउंटिंग लॉस होना चाहिए। एक मेन जो फर्क है हमारा वो है इसका डिविडेंड का फर्क। ये ऑलरेडी 20% पे यहाँ पे हमने दिखा दिया उसको, हमारी डिविडेंड इनकम है, हमने 20% यहाँ पे टैक्स चार्ज कर दिया, बकाया बचा 15%, तो वो हम यहाँ पे दिखा देंगे कि भाई 16 इंटू 15%, 2.4 आ गया ये, इसका टोटल करेंगे तो ये इंशाल्लाह हमारा बराबर हो जाएगा 51.4। और कोई डिफरेंसेस नहीं आ रहा है इसके अंदर, जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट करेंगे, ये हमारा टाई हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आई होगी। क्वेश्चन अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगा, कुछ क्लियर नहीं होगा तो वो यहाँ पे ज़रूर क्लियर हो गया होगा। बाकी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।